Yeah. Hello, ma'am. Is it audible? Yeah. Yeah, sorry, I was talking on the mute. Good evening. Good evening. Okay. Yes. Fundamental management. Okay. Before start, I ask some questions to you. So, what is management? Anyone? What is the definition of management? What do you think about management? Yes, come on. To control the things or to manage the things. It Yes. could be of anything. It could be of business organization, like to take Mhm. control and to look after everything, like how it's going on. Yes, very good, very good. Anyone? Come on, come on. Don't be shy. It's your class. Okay? If you just interact your thoughts and ideas. Okay, don't be shy. Don't be hesitate. Hello. Ma'am, Yes. Mhm. Yeah, the management is like don't let things be happen naturally. Just manage it artificially or done or maybe manage it with our. Yes, come on. Hello, am I Yeah, audible? yes, you're audible. Yeah, yeah, definitely. Yeah, manage it with our control. Like if I want to do this, I will do it in a way. Like I don't want Absolutely. to. Yes. Manage it our Ah, control. Yes, yes. absolutely. Anyone? Yeah, come on. Very good. Very nice. I'm just checking your knowledge. Okay. You are an MBA student. So share your ideas and thought because you all are working in yes, organizations. Yes. planning and organizing the activities of business like this. Correct. Yes. Come on. Management Very is the process of planning, organizing, and what to do, want to do, who's to do. It's a wow. Superb. Yes. Correct. Correct. Come on. Come on. Just share your ideas and view. Yes. Managing is directing people or group of people to reach a goal. Very good. Very good. Anyone? Just share your ideas and thoughts. Come on. Because all are working people. I know. Don't be Ma'am, hesitant. to handle the situation. Yes, correct. Management is nothing but the collection of ideas to make things work. Yes, absolutely right. Anyone? Everyone get a chance. Okay, it's your platform. So communicate with me. Tell me your ideas and thoughts. Correct. All are going well. Yes. People are organize business. Yes. People are organized business. Yes. Jenny said managing is where we plan, organize things before executing them for any organization. Yes, absolutely right. Yeah. Then Shraddha is saying like management is process involving planning, organizing, controlling. Yes, absolutely correct. The control or organizing of something. What something? Something means everything, not something. Everything we need to manage. Okay, everything, every time, every situation. Allotting particular job to those are capable to those work. Yes, fine. Anyone? Management is a People are here. technique Come of. on. Hello. Yes, you're audible. Management is a technique of enabling a workflow for an organization. Yes. Hello, ma'am. Yes. Organizing things in a correct and proper way. Yes. It's called management. We can call it management. Management is directing and controlling people, group of people. Sorry. Yes, fine. Absolutely. Yes, that word is most important. That is group of people, teamwork.
that is important. Yes. Anyone? Everyone get a chance. Okay. So today is our first lecture. So I hope you interact with each other, interact with me, share your thoughts and ideas. It's a very simple subject, but lot of organizations, lot of people make difficult. Okay, because lot of work and not only work, but lot of activities we have to do at a time, depend on the situations, right? Every company, every organizations, even corporates have find a lot of difficult situation, and on that situations we need to handle it, we need to manage, we need to fight with our lot of tasks, boost our team, motivations, inspirations, a lot of things we need to do, right? Come on, speak up. It's your all are in MBA first year. Okay, so sorry, but I need to congratulate to all guys. You are superb and very active people, because you are working somewhere. Those who are working or those who are not working, so they get an ideas and inspire others how to work in any organization or company. Okay, so all are beautiful people, all are energetic people, and we all doing teamwork. Okay, here we are just start our class, and all people, I'm so happy, all people are interacting with each other and share their thoughts. Very beautiful statements you are shares, like that what is management, and everyone knows because all are working here and there. Okay, so beautifully you explain the things, what is management, right? So this is your syllabus. Okay, anyone want to share your thoughts? Anyone have an ideas? No. Okay, fine. So this is your syllabus. It's a subject of fundamental management. Okay, first unit, one second, first unit we have seen like that basic concept. Okay, managers, managing team, workplace, organizations, management functions, some models we have learned here, managerial roles. Every company, wherever you go, you need to play a lot of roles. Okay, so the University of Management, it means lot of companies plays lot of roles, different activities, different schedule, different trainings, everything are there. So the approaches of management is most important. Okay, because if we're talking about academics, so we have seen some approaches. Okay, lot of approaches are there, some behavior is there, then we learn some contemporary approaches. Okay, so lot of things are there we need to learn. Communication skills is most important, teamwork is most important, then planning, administrative management, strategic level. Okay, for example, if you are going any where like interview, okay, what happened, first time you feel nervous because you are a fresher, right? So you feel nervous and you don't know what questions they asked you, and you don't interact with HR and the people who are in front of you, so you feel nervous that time. And when after your interview, you feel like that also nervous because your interview is not done better. Why? Because you don't have an ability to what
answer the questions, because all things are new for you. But the person who already working any other company and he has 5 to 10 year experience and he again interview any other place, so definitely he will give very well because he know how to answer the questions. Okay, so first time when you are have an opportunity to interact with interviewer, that time you feel nervous because you are not prepared well, you don't know how they ask and what questions they ask. Okay, so that is the thing, you feel nervous. But if you are selected as a fresher, if any company, okay, so they will provide you a training, and after that training, day by day, 1 month by month and year by year, you make strong. Okay, you improve yourself, you just what we say कि उसमें आप ढल जाते हो, you like this organization, you feel the work, you feel the environment of work, you are working with teams, you are discussing with team. Okay, lot of people are there, you interact with each other, so definitely day after day, month after month and year after year, you know what is the organization, what is teamwork, what kind of tasks you have given, everything, and आप उसमें क्या हो जाते हो, इन्वॉल्व हो जाते हो और मन लगा के काम करते हो. ठीक है, सो लॉट ऑफ स्किल्स ऑल्सो. ऐसा नहीं है जैसे अभी आप MBA कर रहे हो तो वी नीड यू हैव टू नो लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर. सिर्फ MBA में एक सब्जेक्ट नहीं होता. जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें स्पेशलाइजेशन ये चाहिए वो चाहिए, तो उसी में नहीं, तो आपको सारे सब्जेक्ट सीखने होते हैं, है ना. तो उन सब्जेक्ट में कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप अपना स्पेशलाइजेशन चूज करते हो. यू हैव टू चूज योर वन स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट. सो लॉट ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड. ओके, सो कम्युनिकेशन स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टीम वर्क इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन डिफरेंट स्ट्रेटेजीज आपको आनी चाहिए. अभी तो डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो आपको यहाँ से बहुत ही अवेयर रहना है. कोई भी चीज करते वक्त सोचना है लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. सोचना है, ऐसे नहीं कि कंफ्यूज हो क्या करूं क्या नहीं. लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन दे आर कंफ्यूज, दे डोंट नो व्हाट आर डूइंग. ओके, अभी आप MBA कर रहे हो फर्स्ट ईयर, या बहुत सारे लोग हैं जिनके पास भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है और बाद भी वो MBA कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड है. बहुत सारी कंपनीज में रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट सीखना है ना. तो इफ यू रियली मैनेजमेंट में जाना है, बड़ी कंपनीज में काम करना है, तो मैनेजमेंट नो क्या होता है ना. बहुत सारे लोग अकेले अकेले ही बैठ के काम करना पसंद करते हैं कि नहीं हमें किसी से बात नहीं करनी है, अकेले ही हम काम करेंगे. नहीं, आपका काम ही नहीं होगा. लेकिन अगर आप टीम वर्क में काम करते हो, आपका स्किल यूज कर रहे हो प्रॉपर वे से, तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ होगा, आपके काम में भी इंप्रूव होगा, एवरीथिंग. गॉट इट? सो दैट इज, ये सारी जो कंसेप्ट है ना मैनेजमेंट की, ये हम सीखने वाले हैं यूनिट 1 में. ठीक है, तो यूनिट 1 जो है ये सारे स्किल्स से रिलेटेड है. आपका मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए डिफरेंट कंपनीज का, है ना. हर एक कंपनीज का अलग है ना. आप MNC में जाओगे, वहां का स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट टोटल डिफरेंट है. आप अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओगे तो वहां का एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है. एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे वहां का टोटल है. कॉर्पोरेट तो ऑर्गेनाइजेशंस का जो स्ट्रक्चर होता है, वर्किंग स्ट्रक्चर IT कंपनीज का टोटल डिफरेंट होता है. तो वो सब हम यूनिट 1 में सीखेंगे. उसकी कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशंस क्या है, कौन से मॉडल्स भी है इसमें जो यूज किए जाते हैं. मैक्सिमम जितनी भी बाहर की कंपनी है, MNCs है, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स, उनकी पॉलिसीज होती है, वो पॉलिसी को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो ये हम देखेंगे. देन प्लानिंग कैसे किया जाता है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका प्लानिंग डिफरेंट होगा. चार्टर्ड अकाउंट्स फर्म्स है तो उनका प्लानिंग डिफरेंट होगा. देन कॉर्पोरेट है, उनका प्लानिंग, सब्सिडियरीज है, उनका प्लानिंग डिफरेंट. सो
प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी बिजनेस में, नॉट ओनली बिजनेस, इवन आवर पर्सनल लाइफ में भी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी करोगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, लेकिन अगर आप प्लानिंग करके चलते हो कोई भी काम तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे. ठीक है, तो प्लानिंग में हम लोग कंसेप्ट्स देखेंगे. व्हाट इज द कंसेप्ट, देन उसका नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है. एवरी कंपनी वाइज मैनेजमेंट और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. बेनिफिट्स क्या है उसके एमबीओ के. फिर परफॉर्मेंस कैसे हमें करना चाहिए. ओके, देन उसके गोल्स क्या है, प्लान्स क्या है एवरी डे. ओके, एवरी डे जब हम कॉर्पोरेट में या आप तो जानते हैं जो काम कर रहे हैं उनको पता है कि किस तरह से प्लानिंग किया जाता है वर्क का. ड्यू टू दिस पैंडेमिक वी आर वर्किंग एट होम. ओके, डूइंग कि वर्क फ्रॉम होम में वो क्या करते थे. करना है डे एवरी टाइम बिकॉज ऑफ फिनिश द वर्क. ओके, प्लानिंग करते थे कि नहीं अभी ये फिनिश करना है, वहां से मैसेज आ रहे हैं, मेल आ रहे हैं, ये करना है वो करना है, बट प्रायोरिटी हम काम को ही दिए है. ठीक है ना. तो इस तरह से जो भी कंसेप्ट है प्लानिंग मैनेजमेंट, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है कि हमें इंस्टेंटली कहा जाता है कि नहीं अभी ये करना है, तो हमें वो सब छोड़ के सो ये सब आना चाहिए. बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि नहीं यार मैं एक ही काम करूंगा दूसरा काम नहीं करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. Okay, you should prepare yourself every time because you learn management and management people always active, energetic, अरे भव्यांश, motivate to others and everything. Okay, so भव्यांश, before that, who is okay? So yes, before that you have to set your goals and after that you make a plan and then you have to work regarding that. Now here also we have seen some approaches. What is the goal settings, okay, planning, how to make effective and dynamic planning, how to just what we say कि हमें उस एनवायरनमेंट में क्या करना है, ढल जाना है ना. बिकॉज काम करना है तो हमें उसमें क्या होना है, इन्वॉल्व होना है. इफ यू नॉट इन्वॉल्व दैट मीन्स यू नेवर लर्न एनीथिंग. गॉट इट. देन ऑर्गेनाइजिंग. ओके, जैसे अभी आप ठीक है अभी तो सिचुएशन है हम लोग ऑफलाइन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन भी हमें क्या करना है, बहुत सारी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करनी है. ओके, आप फर्स्ट सेम में हो तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज रहेंगी जो आपको करनी है. अगर ऑफलाइन हो गया तो गुड एंड वेल, आप लोग बहुत सारी एक्टिविटीज है. तो ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हो. कोई भी प्लान जब आप करते हो तो प्लान करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, किस तरह से उसे ऑर्गेनाइज करते हो. ओके, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका प्लानिंग क्या होता है. अगर वो उस हिसाब से आप करते हो, प्लानिंग के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर अगर फुलफिल हो जाता है, देन यू सेटिस्फाइड. ओके, आपका परफॉर्मेंस दिखता है एंड देन यू विल बी प्रमोटेड. सो और कंपनीज में भी ऐसा ही होता है. अगर आपका ऑर्गेनाइजिंग अच्छा है, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी आपका वर्क का क्राइटेरिया होता है, वो अगर आपने अच्छे से फुलफिल कर लिया, then definitely you will be promoted. So ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर है, उसका चेन ऑफ कमांड, बहुत सारी इसमें चेन होती है कि जो लोग कॉर्पोरेट में उनको पता है एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग का सेक्टर अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता है ना, टेक्निकल अलग होता है, आईटीज का अलग होता है. तो ऑल आर डिपेंड विथ ईच अदर्स. ओके, तो पहले अगर एचआर की तरफ से अगर इंफॉर्मेशन आती है, एचआर अगर सर्कुलेट करता है इंफॉर्मेशन फाइनेंस वाले को, मार्केटिंग वाले को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना कंपनी, तो उन लोग क्या करता है, और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग लीडर होता है या मैनेजर होता है. वो क्या करता है कि उसके अंडर के जो पीपल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, सर्कुलेट कर देता है. एंड ऑफ द डे मीन्स जब
किसी का 6 to 8 जो जैसा भी वर्किंग है 8 आवर्स का, उसमें क्या होता है वो रिपोर्ट कर देते हैं कि यस टुडेज वर्क इज डन। ओके, तो इस तरह से सर्कुलेशन होता है, पूरा स्ट्रक्चर होता है, और उस स्ट्रक्चर में मैनेजमेंट क्या होता है, वर्क होता है डे बाय डे, इसे हम डेली रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजिंग है ना, ये जो ऑर्गेनाइजिंग वर्क है, जिस तरह से हम फॉर्मलाइजेशन करते हैं या जिस तरह से वर्किंग करते हैं, टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, बहुत सारा होता है। जैसे फाइनेंस का पर्सन है तो उससे बहुत सारा वर्क होता है, पूरी एक्सेल शीट्स में बैठ के उसको सारे फिगर्स, वो सारी ये नंबरिंग्स वगैरह करना। एचआर का पर्सन है तो उसे सारे रिपोर्ट्स, अपॉइंटमेंट लेटर्स, सम वेजेस, सैलरीज एंड ऑल बहुत करना। मार्केटिंग का बंदा हो तो वो दिन भर कितना कहाँ कहाँ गया है वो सब रिपोर्ट करेगा। टेक्निकल पर्सन होगा तो वो सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है या जो भी नेटवर्क में इश्यूज आ रहा है वो देखेगा। एनालिटिक्स है तो वो सारे रिपोर्ट्स देखेगा कि प्लस माइनस हो रहा है कि नहीं, पॉजिटिव है निगेटिव है, तो एवरीथिंग। तो ये सब किस तरह से करना है ना, ऑर्गेनाइजेशंस में ऑर्गेनाइज करना है। हम लोग एवरी टाइम हम कुछ ना कुछ अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ये हमें सीखना है यूनिट 3 में। एवरी कंपनीज का सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, देन डिसीजन मेकिंग। ओके, डिसीजन मेकिंग ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, टास्क है। आपको डिसीजन लेना आना चाहिए, कोई भी इसका, कोई भी सिचुएशन में आपको डिसीजन लेकर होना जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं मुझे आज यही काम दिया था तो मैं यही करूंगा, आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग। नो, if you are working big organizations, if you want to become a manager, good manager, CFO, CEO, whatever, you have an guts of decision making, proper decision making. okay, और आपको डिसीजन सिर्फ आपके ही फेवर में नहीं लेना है, तो आपके अंडर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो भी टीम्स है, उनके भी फेवर में आपको डिसीजंस लेना है। तो डिसीजन मेकिंग्स में हम क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स एवरी टाइम। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे है, जितने भी डिफरेंट कंपनीज के लोग हैं, और कोई मैनेजर है तो कोई टेक्निकल पर्सन है, उन्हें पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है और हाउ दे फुलफिल दिस, है ना। बहुत बार आप फोन उठाओ या फिर कोई फोन आता है तो हम लोग उठा नहीं पाते, फैमिली से हम लोग बात नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ वी आर वर्किंग। सो डिसीजन मेकिंग अगर आप सही नहीं कर रहे हो या डिसीजन नहीं ले रहे हो किसी चीज का, दैट मीन्स यू आर नॉट अ मैनेजर, यू आर नॉट एबल टू मैनेजिंग द पीपल। ओके, तो जो भी डिसीजंस है वो हमें स्ट्रॉन्ग बेस होके सबके बारे में सोच के लेना है। अलोकेटिंग वेट्स टू क्राइटेरिया, developing alternatives, analyzing alternatives, selecting an alternatives, implementing the alternatives, evaluating decision effectiveness. Okay, everyone's like your decisions. Okay, no one should be interrupt like that ki no, you are not giving me in my favor, your favor, not like that. You are working for organizations, so your decisions always साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज ऑल ऑर्गेनाइजेशंस किस लिए बनी है, प्रॉफिट के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। सो द थिंग्स कीप इन योर माइंड, लाइक डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस। ओके, बहुत बार ऐसा होता है, जब मैं भी कॉर्पोरेट में काम करती थी तो मुझे भी बहुत सारा वर्कलोड होता था। इवन मॉर्निंग 8 to रात को कोई टाइमिंग नहीं रहता था कि कब जाना है, क्या जाना है। इतना सारा फाइल करना है, और मैं तो फाइनेंस इससे थी, तो बहुत सारी रिटर्न फाइल करना है, डे वाइज करना है, फिर बैंक चेक करना है, रिकंसिलेशंस भी मुझे डेली देना है, सम
पेएबल एंड रिसीवेबल एसएपी था, तो पेएबल एंड रिसीवेबल में वर्क करना था, तो वो सारी चीजें इतना ज्यादा हेक्टिक। मैं मॉर्निंग में जब ऑफिस में जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, एवरी टाइम कंफ्यूज, जो प्लानिंग करती थी वो फेल हो जाते थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम बिल्कुल कंप्लीट करके ही जाना, दैट इज द गट्स कि नहीं ओके होना है, बिकॉज ऑफ समटाइम्स पावर इश्यूज होता है, समटाइम्स कुछ टेक्निकल इशू हो जाता है ना, तो पैनिक नहीं होना है, यू डोंट शुड बी पैनिक, यू हैव टू शो योर बूस्टिंग, यस ये काम मेरे लिए है एंड थैंक्स टू योर ऑर्गेनाइजेशन और योरसेल्फ, यस आज मेरे लिए इतना सारा काम है और मैं करूंगा ही। ओके, सो प्रायोरिटी ऑलवेज गिव टू योर वर्क कि नहीं मुझे ये काम करना ही है, होता है। लेकिन ये भी आप सोचिए कि इतने सारे वर्क से जब आप इतना सारा काम एट अ टाइम करेंगे तो आपको कितना सीखने को मिलेगा, राइट? उसमें आपको ये भी सोचना है कि नहीं मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वे एकदम फोकस कॉन्सेंट्रेट करना है, आपका माइंड एकदम स्ट्रेट रखना है कि यस, और वन बाय वन आप एक एक काम करते जाइए, पूरा फोकस आपका काम पे होना चाहिए। ओके, तो जब आप डिसीजन लेते हैं तब भी आपका फोकस उसी से रिलेटेड होना चाहिए, करूं कि नहीं करूं, डू और नॉट टू डू, डू और नॉट टू डू, प्रायोरिटी उसी वर्क को दीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, ठीक है? तो ऐसे डिसीजंस अगर आप लेते हैं तो और जिनका डिसीजंस अच्छा होता है तो डेफिनेटली दे आर इन सीएफओ, सीईओज, HODs in a big organization. So decision making is most important. Then decision makings में हम कुछ जैसे टाइप्स होते हैं ना डिसीजंस के, वो देखने वाले हैं कि किस किस तरह से तरीके के डिसीजंस है जो ऑर्गेनाइजेशंस में लेने होते हैं, उसके टाइप्स क्या है ना, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स है, वो भी हम लोग देखेंगे। केस स्टडीज हम लोग देखेंगे, बहुत हर एक यूनिट वाइज अगर होती है तो गुड एंड वेल, तो केस स्टडीज देखेंगे कि केस स्टडीज अगर आप सीखते हो, है ना, केस स्टडीज एवरी डे ट्राई करेंगे बट वीकली तो एक केस स्टडीज आपको मिलेगा ही, तो केस स्टडीज आपका डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करेगा, गॉट इट? सो एवरी डे और डे आफ्टर डे अगर आप केस स्टडीज स्टडी करोगे, अच्छे से रीड करना है, देन आपको डिसीजन लेना है कि अगर मैनेजर का है तो उसे कैसे डिसीजन लेना है, आप है एम्प्लॉय है तो उसे कैसे डिसीजंस लेना है, ये हम लोग यूनिट 4 में करेंगे। देन सम स्टाइल्स है डिसीजन मेकिंग की, वो भी हम लोग देखेंगे। सम कम्युनिकेशन स्किल है कि किस तरह से डिसीजंस लेते वक्त हमें यूज करना है या हमारे टीम के साथ डिस्कस करना है प्रॉपर वे से, एनी काइंड ऑफ, टेक्निकल हो, फंडामेंटल हो या फिर फाइनेंशियल्स हो, बहुत सारे इश्यूज होते हैं कंपनीज में, तो हमारा जो डिसीजन है या अगर इफ यू गेट एन चांस टू टॉक विद देम, तो ऐसे ऐसे बोलना है कि उन लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी आपने बोला है ना, कोई भी हो, प्रॉब्लम्स भी हो सकती है बहुत बार कि आपका वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि सम टेक्निकल इशू है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बट ऐसा नहीं कि वो काम आप टाइम पे कंप्लीट, आपको ज्यादा टाइम भी देना होगा। सो ऐसे डिसीजंस हमें ऑर्गेनाइजेशंस में लेने होते हैं। देन लाइक दैट कि कंट्रोलिंग, ठीक है, यूनिट 5 में हम देखेंगे कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग तो हमें सब पे होना चाहिए, है ना, सिर्फ कंपनी पे ही कंट्रोल नहीं करना है, तो खुद पे भी हमें कंट्रोल होना है। बहुत सारे लोग जो गुस्सा आता है बहुत ज्यादा, है ना, नहीं करूंगा, मुझे जितना बताया है उतना ही करूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, कंट्रोल लाइक दैट कि जितना आपको दिया है उतना ही करना है, बट परफेक्ट करना है, परफेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? देन कंट्रोल की भी प्रोसेसेस है, डिसीजंस की जितने टाइप्स हम देखने वाले हैं वैसे ही कंट्रोल्स के भी बहुत सारे क्या है प्रोसेसेस है, मैनेजरियल डिसीजंस है कि किस तरह से हमें उसे फ्लो करना है। सम फीडबैक्स है, हम लोग जैसे देते हैं वैसे उन कंपनीज में भी कुछ होते हैं जो फीडबैक दे रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ है आज का वर्क, आपका रिपोर्टिंग्स होता है,
फाइनेंशियल कंट्रोल्स कैसे होना चाहिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं या कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो उसे कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें हमें मेंटेन करनी है। डाटा सिक्रेसी मेंटेन करनी होती है एवरी ऑर्गेनाइजेशंस में, आप कहीं पे भी कुछ भी नहीं ये कर सकते हो। तो वो सारा ट्रेनिंग जब आपको देते हैं, जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हो, तो उस टाइम क्या होता है, आपको ट्रेनिंग दिया जाता है ना। तो उस बेस पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं। सो ये सारी चीजें जो हम देखने वाले हैं वो है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इजी है बट लॉट ऑफ पीपल आर फेल ऑन दैट सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको असाइनमेंट भी रहेंगे इसके, आपको असाइनमेंट करना है और असाइनमेंट कंपल्शन है आपके लिए। ठीक है, अगर आपने एक भी असाइनमेंट नहीं दिया तो आप फेल होंगे। और लास्ट टाइम भी, मतलब लास्ट सेम में भी 25% पीपल फेल हुए हैं बिकॉज ऑफ दे आर नॉट सबमिटिंग देयर असाइनमेंट। फ्रैंकली स्पीकिंग हुए हैं। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फेल तो हम करते ही हैं बच्चों को, इसलिए को कोई भी असाइनमेंट देता है या कुछ भी असाइनमेंट आता है कोई भी, तो आपको वो प्रॉपर वे से सबमिट करना ही है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट्स हो कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबमिशन इज इम्पोर्टेंट। टाइम पे अगर आप करते हो, भाई आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो तो आपको तो सारी चीजें टाइप में करना आनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग सारी कंसेप्ट रिवाइज करने वाले हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कैसा कैसा वर्क होता है, उसकी कंसेप्ट क्या होती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स भी अगर आप कर देते हो तो उससे कितना नुकसान हो सकता है। ओके, सो ये लिटिल थिंग्स वी read it, we communicate and some managerial competencies होती है डिफरेंट टाइप्स की, वो भी हम देखेंगे। टीम वर्क क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, कैसे हमें पुश करना है, कैसे वर्क करना है, एवरीथिंग वी लर्न ऑन दैट सब्जेक्ट्स। देन प्लानिंग के बारे में हम लोग सोचेंगे कि प्लानिंग किस तरह से की जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसका प्लानिंग क्या करता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे तो आपका खुद का बिजनेस है फॉर एग्जांपल, तो बिजनेस में आप डिसीजन क्योंकि आप तो वहां पे सिंगल हो, है ना, आपके पास स्टाफ नहीं है। शो होता है बिजनेस में, तो वन मैन शो होते हुए भी अगर आपको अपना बिजनेस आगे लेके जाना है तो आपके डिसीजंस प्रॉपर होने चाहिए, आपके प्लानिंग प्रॉपर होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपकी प्रॉपर होती है, डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन योर बिजनेस। बट अगर बहुत सारे लोगों के बिजनेस नहीं चलते, वो बंद हो जाते हैं, व्हाई? बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर प्लानिंग, नो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, है ना, तो इसलिए वो फेल हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर नहीं होता है, होता है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे बिजनेस क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। ये जो मैनेजमेंट फंडामेंटल है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें जो है, मतलब कंसेप्ट्स सारी क्लियर की हुई है, बहुत सारी केस स्टडीज भी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन दो आप if you want to start your business, any kind of business, definitely you improve it and you learn lot of things from that particular subject. Got it? Yes, anyone want to ask anything? Come on. Hello, ma'am. Yes, tell me your myself name and Suvarna. start. Yes, Suvarna. Myself Suvarna. Yes, Suvarna. Ma'am, after completing each and every unit, we will get notes from your side, or we have to prepare with our own. No. From books. Every day we are, whatever the sessions are conducting that time, we share with our PPT to you. Okay, you take a screenshot, or today I think Mohit sir share the link of NDTL books. Okay, so you have searched there the notes of management fundamental. Okay, you get it definitely. And when the lecture start, any kind of lectures, if you prepare before,
it's really benefit for you. Got it? Okay. Okay, Yeah. okay, ma'am. Okay. Yes. Thank you. Anything? Anyone? Yes, come on. No one wants to ask question. Come on. Ask some if you have a query regarding syllabus, assignments, some marks, some subjects, whatever. Just interact. Just ask. Hello. Yes. Yeah, ma'am. I would like to ask something. Like, Mhm. right now we have you have been teaching us management fundamentals, right? Mhm. Mhm. So I want to ask one thing. Like, this subject is fully a descriptive type, or it having something practical, or what? Like, it includes Both. practical. It's a descriptive and practical. Practical means we have shared some case studies and you have to Huh? solve it. Okay. Okay. Yes. And it's a theoretical subject and a case study based subject. Okay. So case study means like we need to put our mind into that case study and just find the conclusion, right? Yes. Oh, nice. Anyone? Any idea, any concept if you want to ask like that? Everyone share their ideas. That means for when we start the session, so a lot of people say like that ki what is organized, so everyone know what is the management. Okay, fundamental of management. So it's a very interesting subject and you know how to learn it, right? Yes, come on, don't keep quiet, interact with me, ask anything else regarding subject, regarding assignments, regarding your notes. Have you seen? Open the link, NDTL link. You check your mail, yes or no? Just find notes. When we are studying or when we are in your age, that time we are too much eager. When I got a syllabus, that time we just searching the notes of that particular subject. Okay, if we don't get any kind of subject, so I'm that time we just think about that how we get this. So Yeah, just actually, ma'am, we have received one link to the mhm, drive. Like mhm. when after clicking on this link, like it directly, indirectly take you to the drive, and there Mhm. are so many type of syllabus or so many type of ebooks are present there. Very good. So So yes. at morning, Rajendra sir told us ki just go into 2019 pattern and just find your ebook. Mhm. So I have done this and I have found our Very good. latest books. Very good. Very good. So you read it. Okay. Yeah, the syllabus, I have read the summary of the starting pages. Mhm. Good. Any other? देखा कि देखा ही नहीं है, बस पढ़ा है मेल पे, ऐसा मत करिए. You need to show your interest. Today you share everything. अगर आप देखेंगे नहीं और मुझे बोलेंगे कि मैडम नोट्स नहीं मिले, ये नहीं मिला, तो नहीं. ओके, आपको ही हाँ, अगर कोई डिफिकल्टी है, सब्जेक्ट में नहीं आया, समझ रहा है, दैट इज फाइन. लॉट्स ऑफ बुक्स आर देयर. पढ़ोगे तो ही होगा, है ना? यस, कम ऑन. वुड यू लाइक टू आस्क समथिंग? एनीवन? कुछ भी पूछिए. योर सेशन. Ma'am, this is verbal communication was mentioned in the timetable, or Yeah, actually, some issues are there. Therefore, the session is conducting fundamental of management. Okay, sir. Before start the session, Dr. Anand sir explained that the session is
keeping Okay. after 2 or 3 days. Yeah. Yes. Okay, tell me about the planning. Planning क्या होता है, कैसा होता है? Only planning. Give any examples. Anyone? How should we do proper planning? What is the proper planning? Hello? Don't keep quiet, please. What is planning? Hello. Yes. Ma'am. Planning is nothing but process of executing particular task. How? Like Give me if an example. Like ma'am, basically planning, if we have to execute any task like preparing notes or something, then we will plan like this, that we will search for something data on internet or on the Google Drive, like Rajendra sir shared a Google Drive link on the group. Then afterwards we will search the subject, then particular topic, and then afterwards we will write it down or type in the Microsoft Word. Like this process is called planning. Yes, but not proper. Planning. अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कल एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, मैंने आज आपको कॉल किया और आपको बोला कि आपको कल 11 बजे ये इवेंट करना है, तो उस हिसाब से आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए? What we do first? Ma'am. Hello, ma'am. Yes. To make Yes. a timetable and follow it. Yes, correct. Anyone? Yeah, ma'am. For planning, first of all, like we should visualize the things, like what we are, like what we want exactly. Like say example for like we are visualizing that we want to do MBA. So for that plan, that we have to give the like CP exam, and for that we have to fill the form. So for that we have to check the dates. This is what we are doing planning. We are not implementing, we are just planning. But I'll first of all I'll like study for the CP, then I'll appear for the exams, then we'll, for cap rounds I will check the dates, then I'll apply. This all things will be like included in the planning. And planning, for planning we should visualize everything. Like And what about discussing? I'm just talking कि मैंने जो example दिया था कि I'm just talking कि today, tomorrow you have to make an event. So what is your plan for? Because suddenly I have given you a task. Okay, I have no manpower or whatever the problems I have as a faculty. I just given you a task. The students, tomorrow you have to arrange this or you have to conduct same activity at 11 AM. So आपका planning क्या होना चाहिए? Which activity? Yes. Hello, ma'am. You are absolutely right, Deepika. Yes. Come on. First of all, I think we should set a budget. Yes. Then we can work on plan. Like if we have a budget, then we can know what should we can do on that budget. Okay, right. Right. Anyone? Hello, ma'am. Planning may be defined as deciding in advance what to be done in future. Okay. Fine. And it See. is also process of thinking before doing. Yes. Right. See, Hello, what? Yes. Anyone? Planning is a process we take the steps for reach our goal. Yes, correct. Actually, what I'm asking, मैंने क्या बोला है कि कल मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो आपका प्लान क्या होना चाहिए? But एज अ स्टूडेंट, ओके, like एज अ स्टूडेंट मैंने आपको एक्टिविटी दी है, तो डेफिनेटली कि मैंने आपके जो स्टूडेंट का कोऑर्डिनेटर होगा, जो भी है, उसे बताया होगा कि यस टुमारो यू हैव टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी. तो वो क्या करेगा? सबसे पहले कि यस मैम, मुझे तो उसने बोल दिया कि यस कल हो जाएगा, बट वो क्या करेगा?
सबको सबसे पहले मैसेज करेगा कि यस, डिस्कस करेगा कि कल ये इवेंट है, ये गेस्ट आने वाले हैं, इनका इनका ऐसा ऐसा करना है, राइट। सब प्लान सबके साथ सबसे पहले वो क्या करेगा, डिस्कस करेगा, है ना। देन वो बजट जो भी है, कॉलेज का इवेंट है, डेफिनेटली एवरीवन गिवन ब्यूटीफुल आंसर्स, बट आई जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू स्टेप बाय स्टेप, है ना। कोई भी प्लानिंग में क्या होता है स्टेप, जैसे अगर हम हमारा जो रूटीन होता है ना, कल का मेरा रूटीन है कि अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock मुझे वेकअप होना है, देन मुझे वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, देन मुझे लेक्चर्स लेना है, देन आई हैव टू मेक सम माय whatever breakfast and then we'll go to office. So that is the planning. तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कोई एक्टिविटी कंडक्ट करनी है तो प्लानिंग करते हैं कि yes, some tasks हम क्या करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, हम टीम बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, एंड विल हैंड ओवर सम टास्क टू द ग्रुप पीपल, है ना। ग्रुप पीपल डिस्कस करेंगे, एंड देन whatever the programs, क्या क्या हमें प्रोग्राम्स लेने हैं, क्या क्या, वो सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करेंगे। ये हो गया आपका प्लानिंग, एंड जो भी इवेंट है वो सक्सेसफुल करेंगे, राइट। यस। तो जब वो इवेंट सक्सेसफुल हो जाता है आपका, तो वो आपका अचीवमेंट है कि यस, आपने वो गोल या जो भी इवेंट है वो क्या किया है, अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। आपका सबका परफॉर्मेंस जो है उस ऑर्गेनाइजेशन, वो जो भी एक्टिविटी होगी उसमें क्या होगा, शो ऑफ होगा। दैट इज द प्लानिंग। तो ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनीज में, कॉर्पोरेट में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, एवरीवेयर इसी तरह से प्लानिंग। आपने टाइमिंग, और सबसे मेन बात जो किसी ने नहीं बोला वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम फॉलो नहीं करोगे, आपको अगर मैंने 11 बजे का दिया है और अगर आपने 11 बजे किया ही नहीं, 12 बज गए, तो लीव पे। गॉट इट? सो टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन प्लानिंग। टारगेट अगर आप टाइम पे नहीं फुलफिल करते हो तो आपके टास्क को, आपके जितने भी एफर्ट्स आपने उसमें लगाए हैं वो क्या है, जीरो है। ओके, सो दैट इज प्लानिंग। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग? नो वरी, हम लोग सब सीख रहे हैं डे बाय डे। हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखने वाले हैं, बूस्ट होने वाले हैं, मोटिवेट होने वाले हैं, और यही सारी चीजें हमें लाइफ टाइम तक यूज करनी है, यूज करने वाले हैं। ऐसा बिहेव करिए कि आपका बिहेव देख के, आपके डिसीजंस को देख के, आपकी पर्सनालिटी देख के आपके कलीग्स, आपके ब्रदर्स, आपकी फैमिली भी कुछ लर्न करे, है ना। तो दैट इज द ऐसी पर्सनालिटी वी नीड टू इम्प्रूव। ठीक है? यस, एनीवन वांट टू आस्क? Yes, ma'am. I would like to say something. Can I? Yes. As per Miss Shraddha says right now, like planning is like planning for the planning in advance. It's also called as planning. Like we have been discussing in advance. So what I believe, like that 11 a.m. wala show is like our aim, and right now we have been discussing something. So we will try to cut that 1 kilometer into chota centimeter or millimeter, right? So just like if we need to gather some flowers, so I'll tell some if from my team, I'll tell some girls like just go get some flowers because your choice is good, right? Yes. I'll tell some boys like just arrange some seats to be that our chief guest needs to sit somewhere, to arrange some seats. Then arrange some trophies, arrange some a Yes, host also. whatever, yes, yes. A host also. Like it's like a choti we have been taking measures just Yes. to achieve that aim, that Of 11 course, a.m. wala absolutely aim. right. Yes, So it's that is your, called planning. it's your So responsibility, and responsibility is a major part in planning. So right? the major personality test is like you should have a leadership quality just to lead your team. Absolutely, yes, Right? correct. So that's the only thing I wanted to speak. Thank Yes, you. yes, correct. Yes. Anyone want to? Yeah, okay. So our session is, we need to close our session because another session is going on. So thank you so much. I'm so happy you are really brilliant people are here. We enjoying a whole fundamental of management from today to till end. Okay. Have a nice day and good day. See you tomorrow.
Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for this energetic lecture. Yeah. Thank you. Thank you.